जैसा पेपर लीकेज का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीकेज का जैसा सर्कुलेशन में आया, गवर्नमेंट हैव इमीडिएटली जंप इनटू इट और फ्रॉम द डे वन the Itanagar Capital Police have swung into action for all kind of investigations, or in a very short period they crack the things matter और 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये भी बताना चाहता हूं कि ईटानगर कैपिटल पुलिस ने Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. काफी एडवांस स्टेज तक इन्वेस्टिगेशन कर चुका है और इसके साथ साथ जो हमारे स्टेट के SIC अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसका ऊपर में हाई लेवल इंक्वायरी हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी विथ कमिश्नर लॉ एंड सेक्रेटरी AR का भी गठन किया टू स्टेट कैबिनेट विथ द ऑफ 6 पॉइंट्स का साथ में 15 डेज का टाइम दिया गया है और 15 डेज के अंडर उस टर्म्स और रेफरेंस को सबमिट किया जाएगा गवर्नमेंट का साथ। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू अगेन, एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू had said on the day one, that चीफ मिनिस्टर ने कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने कहा, डे वन ऑफ when the paper leak issue came into circulation, that every person who are involved will not be spared. Even if the police have gone into too deep into, but still government have decided to go further into it to reveal all the truths, whatever is going on in the Public Service Commission. Therefore, once again, I'm telling that the government have decided to recommend the matter of paper leakage to the Central Bureau of Investigation. Thank you. If there's any question. Sir, अभी का आपने बताया, लेकिन what about the 2014-15 का, जिसमें पेपर लीकेज में काफी कमीशन के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी वो वापस रिज्यूम कर लिए हैं, तो इसको लेकर कितना गवर्नमेंट सीरियस है? बार बार कहते हैं कि सीरियस है, लेकिन 2014-15 को फिर 2 years गैप हो गया, फिर 17-18 को हुआ, अभी फिर 2 years गैप हो गया, अभी 2022 को सेम केस है। हाँ, that is why गवर्नमेंट ने ये फील किया कि there must be some procedural lapses. Therefore, गवर्नमेंट ने 3-member high power committee constitute किया है, who will be submitting with all SOPs कि वहां पे किस कारण से ये सही नहीं होता है, तो वो जो है 15 डेज का अंदर में आएगा 3-member कमेटी का रिपोर्ट जो है, तो उस आधार पर we will ensure that the system in the APCS is strengthened to the fullest. Sir, ये CBI investigation is just for AE civil exam, or is for the entire exam conducted by the commission since last 2 years or 1 year? Because we got to know, especially AE electrical exam, there was a loophole and gross
negligence from the part of the commission. And issue were being raised by the commission members. They were unaware when two commission members held a press conference day before yesterday. They said that they are unaware. So these investigations would be entirely on the process or just confining to AE civil exam? No, presently we are recommending for inquiry on the AE paper leakage of recently exam conducted, so AE paper leakage का other पर ही we are recommending it. However, there is no terms of reference as to how extent they can go. सर जो जयराम सर वो 1992 से ही ये कमीशन है, तो ऐसे प्रीवियस में भी बहुत काफी हुआ होगा रिगार्डिंग तो पेपर को लेके मिसलीड किया गया होगा, लेकिन इस पर रिकॉर्ड हुआ है, तो जितना भी उन्होंने कंडक्ट करवाया उनको कंसिडर नहीं करेंगे इसको ऊपर इन्वेस्टिगेशन में? As I have told you, हम लोग CBI को रिकमेंड कर दिया गया है, तो CBI में गो टू देयर माने जो आप लोग उन लोगों का जो सिस्टम में बनता है, दे में गो डीपर इनटू इट आल्सो. सर और जितने भी एस्पिरेंट है उनके तरफ से जो रैली निकाला जाए तो उसमें उनका डिमांड सीबीआई का जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन सर उनका दूसरा डिमांड था कि जितने भी ऑफिसर्स है, मेंबर सेक्रेटरी चेयरमैन से उन्हें हटाना चाहिए, नया को लाना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना होगा? देखिए, चेयरमैन और जो कमीशन है, कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का कारण देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स. कई प्रोसीजर से इन लोग कंटिन्यू करना या माने जो कंटिन्यू नहीं करना, वो एक प्रोसीजर है, so that procedure has to be completed. They are constitutional body, and the government, since they are a constitutional body, they are constitutional procedures to fulfill for their continuation. और अगर CBI जो investigate करेंगे, तो under CBI's finding, whoever will be not spared. और एक था ये जो कमीशन का कारण से वो गलती करने का कारण से एक कैंडिडेट का एज बार रहता है, किसी का एज क्रॉस होने के बाद वो फिर से अपियर नहीं कर पाता है, तो इस पर तो वो लोग डिमांड है कि 40 एज से करना है, तो क्या गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेंगे कैंडिडेट का डिमांड को? हाँ जी, ये गवर्नमेंट जो है, जो अभी जो एग्जाम में जो अपेयर किया था, अगर हम लोग कंडक्ट करने तक अगर उन लोगों का एज बार होगा, देन गवर्नमेंट विल रिकंसिडर फॉर देयर क्वालिफिकेशन थ्रू कैबिनेट डिसीजन. सर जो सिविल सर्विस का जो लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था वो 2019 में किया गया था, अभी 3 इयर्स होने वाले, जो कि हर साल होता है, तो अभी तक क्यों नहीं करवाया गया? तो हमने मेंबर से बात की, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है. कौन सा वाला? सिविल सर्विस का 2019 में लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था. ना अभी एग्जाम जो एक्चुअली देखिए, ये जो टाइमलाइन जो सेट करना है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिकमेंड किया गया कि हम लोग का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इट शुड बी इन लाइन विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो हम लोग ने ऑलरेडी उसको एडॉप्ट भी कर लिया. तो बाकी जो जितना जो टाइमलाइन सेट करना हो, कमीशन खुद ही करते हैं. तो होपफुली ये जितने भी जो प्रोसीजरल लैप्सेस है, जो 3 मेंबर जो रिकमेंड फाइंडिंग्स को रिकमेंड करेंगे, तो दैट अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू इंस्टॉल द राइट पर्सपेक्टिव. सर और एक क्वेश्चन था, सॉरी, जो इन्वेस्टिगेशन अभी चलेंगे, तो अभी तो सीबीआई के बोल जाए, लेकिन किसी को इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको पुलिस को कितना फ्री हैंड दिया जाएगा? नहीं, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज में है. इट इज ऑलमोस्ट इज टू बी सबमिटेड. वो हम लोग वो करेंगे, और प्लस साथ में हम लोग का जो 3 मेंबर जो ये कमिटी है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन है. तो आप लोग जो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो देखा होगा, तो दिस इन्वेस्टिगेशन भी दैट विल बी जो सीबीआई भी शायद ये जो इन्वेस्टिगेशन को भी बेस करके ही उन लोग आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट किया, दैट इज ए डॉक्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इंक्वायरी के लिए. तो ये वैलिड इनवैलिड होने का कोई कारण नहीं है. दैट इज ऑलरेडी ए वैलिड प्रूफ. तो जिसका चलते हम लोग 6 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके रखा है. तो दैट विल कंटिन्यू टू डू. सर और लास्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आउट ऑफ ये सिविल सर्विस का आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन सर आपने ही वॉइस नाउ चैनल पे 30 अगस्त में ये एसआई स्पोर्ट कोटा को लेके एश्योरेंस दिया था कि जब भी डीजीपी वापस आएंगे तब रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे. सर इट्स गोइंग टू बी लाइक 1 मंथ, अभी तक डीजीपी भी वापस आ गया लेकिन रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है. नहीं, ये पुलिस का जो कोटा था वो बीच में ये पेंडेमिक आने का कारण से भी थोड़ा लेट हो गया. तो ऑलमोस्ट एवरी एक्सरसाइज हैज बीन डन, बट इन बिटवीन क्या हो गया कि हम लोग का जो ओएम से एक ऑर्डर आया था
कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा का जो एग्जाम होता है बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो वहां पे APCA से एक मेंबर होना बहुत जरूरी है। वो एक OM से एक लेटर आया था, तो फिर OM हम लोग जो DG PHQ से जो एक चिट्ठी लिखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप लोग एक मेंबर भेजिए, हम लोग यहाँ में स्पोर्ट्स कोटा का एग्जाम होना है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से ये रिप्लाई आया कि हम लोग जो है ऑटोनोमस बॉडी है, सो हम लोग कोई भी एग्जाम में जा नहीं सकते, वो लेटर आया। तो रिसेंटली ये कैबिनेट में ये मैटर उठा है और कैबिनेट ये निर्णय ले लिया कि हम लोग जो AP अरुणाचल प्रदेश हम लोग का जो ये SSB से हम लोग मेंबर मांगने के लिए, वो कोई भी ये डिपार्टमेंट के एग्जाम में SSB से एक मेंबर रिप्रेजेंट करने का ये निर्णय ले चुका है। तो अभी हम लोग अभी एग्जाम को डिक्लेयर करने के लिए होम डिपार्टमेंट में आ चुका है और होम डिपार्टमेंट से थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में भेजा है। होपफुली इट विल बी रिजल्ट विल बी आउट वेरी सून। सर, आप तो सुन बोल रहे सर, कुछ डेट स्पेसिफिकली आपकी तरफ से एश्योर किया AR डिपार्टमेंट अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो कैंडिडेट है आप सबके साथ कोलैबोरेट करके वो लोग धरना उठाने वाले हैं। नहीं, AR डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो पहुंचने के बाद वो जैसा हम लिसन पहले से नहीं है, रिसेंटली जस्ट नॉट मोर देन ए वीक एगो वी हैव सेंट द फाइल टू द AR डिपार्टमेंट होम से। ये आगे से नहीं है, AR में हम लोग वीक आगे हम लोग भेजा है एंड इट इज व्हेन दे विल मार्क अस बैक अकॉर्डिंगली वी विल डिक्लेयर द रिजल्ट।